तो आप ये अननेसेसरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, इसलिए वो नेगेटिव और स्ट्रेस वाले इमोशन में जा रहा है। आपको इतिहास ये नहीं सिखाती कि उस समय क्या हुआ था। इतिहास आपको ये सिखाती है कि उस समय जो हुआ था वो दोबारा ना हो। देख लो वो कितना बुरा हुआ था। अब वो इस सरकार का एजेंडा था या पिछले सरकार का एजेंडा था, बट सत्य घटना तो घटी है ना। वो जब हम लोगों ने सारा भाई वर्सेस सारा भाई बनाया था, तब वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही पसंद आ रहा था। सारा भाई वर्सेस सारा भाई आज रेलिवेंट है। Hi everyone. So today's guest is known to have reinvented himself for decades, entertaining audiences across OTT, television, and film platforms. He's known for his impeccable comic timing as well as his incredible versatility as an actor. So I'm extremely happy to have Rajesh Kumar with us. Just a small note, it's a rainy day in Mumbai, so this interview happened over Zoom, but I am sure the content will make up for it. Let's go. It's an honor to have you here. Thank you for being here. Thank you. So I wanted to start by asking that you stepped away for a while from acting and dabbled with farming. So how do you think farming and living closer to our most organic version relates with mental health? See, it might sound little spiritual to, the question is very spiritually inclined because you are trying to find life in the work you do. Mhm. But there is no work as such for me. It is all life and life and life and life. There are certain things which you do when you are living on this planet. Is it worthy enough? It needs your attention, it needs your devotion, your time, and whatever time you are on this planet, is it fruitful enough to this particular life or to the life you are getting connected with, or you are bringing some difference in others' life? All these things are under one roof. So it's an umbrella of life. And these are small, so sometimes the rain falls on it, sometimes the sun rays fall on it, but it is the life just goes on. The umbrella just either it shelters you or it कई बार उसके अंदर से भी पानी आपके ऊपर आता है। ये जो पूरा प्रोसेस था फार्मिंग का, ये एक आई थिंक एजुकेशन, अवेयरनेस एंड क्लोजर टू समथिंग विच इज मीनिंगफुल फॉर यू, इन तीनों चीजों का ना ये एक एक मिश्रण था कि मेरा एजुकेशन मुझे चीजों से अवेयर करवाता है। अवेयरनेस सिर्फ जानकारी से नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग से भी होती है। सो जब आप किसी चीज को समझ जाते हैं, एक कि हम हमारे पास अभी के सिचुएशन में, अभी हम जिस तरह से प्रोग्रेस किए हैं, हमारी अभी की जो लाइफ है या लाइफ स्टाइल है, या जिस तरीके से वर्ल्ड रिवॉल्व हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है, वो सारी चीजों में आपकी क्या जरूरत है, आप अपने आप को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज दिस होल प्रोसेस इज वेरी इंक्लूसिव इन नेचर। आप इस धरती पे कहने के लिए इंडिविजुअल हैं, लेकिन आप अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंक्लूसिव नहीं होंगे, तो ये वर्क ही नहीं करेगा। आइसोलेशन में कभी लाइफ वर्क नहीं करती है। तो जब आप अवेयर होते हैं एजुकेशन के माध्यम से, आपको पता चलता है कि सम थिंग्स आई हैव गॉन ऑफ over the period because of the population, because of certain things, because of the maximum consumption we are doing at this time, जब हम बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, वहां पे हमें कुछ चीजें तो बचानी भी पड़ेंगी ना। अगर आज आप पैसा कमाते हैं तो आप एफडी भी करते हैं, एसआईपी भी करते हैं, कि आपके आने वाली जनरेशन, ना सिर्फ आपका बुढ़ापा सिक्योर हो, बट आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी आप कुछ छोड़ के जाए, है ना। आप आपको विरासत में अगर आप वसीयत में मिल जाता है कि भाई इतने करोड़ रुपए आपके पिताजी आपके लिए छोड़ के गए, आप खुश हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं जो चीज कंजम्पशन की है, जो सिर्फ आपके कंजम्पशन की नहीं है, बल्कि आप आने वाली पीढ़ियों के कंजम्पशन के लिए है, अगर वो किसी तरह से उस पर रेड फ्लैग होता है, तो डोंट यू थिंक वी ऑल शुड पार्टिसिपेट? सो इट वाज नॉट ओनली अबाउट मी, इट वाज the whole the line which moved me from within, the line which I concluded in myself was that the day you stop thinking about yourself is the day you start thinking about others, and the day you start thinking about others, others start thinking about you.
So there is this whole cycle you have to be in. Everything is cyclical on this planet. Even the solar system is moving in a cyclical way. तो आप कहने के लिए जाते हो कहीं, लेकिन आप घूम के देखते हो आप वहीं आ जाते हो। तो आपने जहां से शुरुआत की थी, जिस जिस भी परिवेश में आप थे, जिस भी माहौल में आप थे, जिस भी इकोनॉमिक कंडीशन में आप थे, आप सब दुनिया घूम करके ना आप वापस वहीं आते हो, और आपको लगता है कि यार इस बीच में जब मैं इससे अलग गया था तो ये तो काफी कुछ बदलाव हो गया है। अब इसको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस समय ये आप निकले थे उस समय वो संपन्न था, वो अपने आप में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से तैयार था। दैट इज वाई यू यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन एंड इन फ्लू समवेयर। बट वेन यू केम बैक एंड सडनली यू आर फाइंडिंग दैट लैंड बैरन, बिकॉज इस बीच में बहुत कुछ हो गया, और सडनली उस धरती की जो अपनी ऑर्गेनिक क्षमता थी वो सब खत्म हो गई। तो नाउ इज द टाइम टू यू नो रिप्लेनिश इट। उसको रिप्लेनिश करोगे तो आने वाले बच्चों का फ्यूचर और सारी चीजें सुधर जाती हैं। सिर्फ बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वी हैव टू रियलाइज दैट एवरीथिंग ऑन दिस planet comes from the soil. You make aeroplane, you make rocket, you do whatever. You do whatever on this planet. Not even one thing you just see around does not come from soil. And that soil, including us, including human, including all the creatures on this planet, everything comes from soil. And that soil, when it is in danger, don't you think our education should be formidable enough to tell you to take a leap in it and step into it and just replenish it again? Just make it, uh, fruitful enough for the others also to be able to consume it. Today we have, I do not have the numbers with me, but today we have so many of diseases are there, so many of the kids, the future generation, so much of autism is happening. इसके पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो हेल्थ प्रोवाइडिंग चीजें हैं, जो जो फ्यूचर जनरेशन को क्रिएट करती हैं, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रही हैं। उसमें उसके मिनरल्स जा रहे हैं, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा रहे हैं, उसके अंदर के जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो सब कम हो रही है। जब ये सारे इंफॉर्मेशन जब आप गैदर कर लेते हो तो आपका पास ऑप्शन नहीं रहता है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है कि आप कुछ ना करें। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड इज ऑल्सो मेड ऑफ टू वर्ड, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। So if I'm responding to the air right now, I'm able to live. If I'm responding to you right now, we are able to do a podcast. If we do not respond to Mother Earth, और जो भी नाम आप इसको दे दीजिए इमोशनल बनाने के लिए, बट मुद्दा यही है कि भाई मिट्टी खतरे में है, और सॉइल खतरे में है, रिजर्व्स हमारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज के वो खतरे में है। तो लेट्स पार्टिसिपेट इन मेकिंग इट or replenishing it at least for another 100 years, and create a wave in such a way कि जो भी हमारे बाद इसको देख रहा है वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से देख रहा है, that they just do not consume it and destroy it, but while consuming it they are also creating SIP of soil, कि भाई वो आने वाली जनरेशन तक एग्जिस्ट कर जाए। सो मेरा ये किसी चीज को छोड़ के किसी चीज को करने नहीं गया था मैं, कोई शौक नहीं था, लेकिन हाँ उसको पूरा अटेंशन देने के लिए कुछ चीजों को बैकसीट करना पड़ा था, जो जिसमें सबसे पहले उस मैं को बैकसीट करना पड़ा जिसके लिए मैं जी रहा था। माई फैमिली, माई मनी, माई लाइफस्टाइल, माई हेल्थ, माई दिस थिंग, माई नहीं नहीं नहीं, अभी ये आई को हटा करके अभी ये इंक्लूसिव होने की जरूरत है। अभी ये go on the other side and then look into it, the details of it, and you'll find that people like you also should jump at this age, should take it seriously। आप अपने पढ़ाई को उतना बड़ा बना दीजिए, अपने एजुकेशन को उतना बड़ा बना दीजिए कि आप अनअवेयर ना रहें। और सोशल मीडिया एक अच्छा टूल है इस चीज के लिए। लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे नेगेटिव इंफॉर्मेशंस और ये आते हैं, नहीं, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आज मैं और तुम जूम कॉल पे बात कर रहे हैं और हम करोड़ों लोग तक पहुंच सकते हैं। आज से 20 साल पहले भी ये हमारे पास टूल अवेलेबल नहीं था। तो इस टूल को कैसे यूज करना है, दैट इज
हमारे लिए एक बहुत बड़ा, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। एंड सो फार्मिंग, दैट इज व्हाई इट हैपेंड। मुझे ये सारी चीजें पता चली और लगा कि नहीं, अब समय देने की जरूरत है। तो ही चीज होती है लाइफ में, या तो चीजें होती हैं या नहीं होती हैं। करेक्ट। तो ऐसी कई घट चीजें हैं लाइफ में ना, आपके प्रोसेस ऑफ लाइफ में, कि वो नहीं होती है। और कई चीजें हैं प्रोसेस ऑफ लाइफ में जो होती हैं, तो हम उसको कितनी बार सक्सेस बोले और कितनी बार फेलियर बोले। आई थिंक इट इज ओनली हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग। The whole existence is between happening and not happening. So I do not want this turn out to be a spiritual. तो यही था कि एग्रीकल्चर जो था एकमात्र ऐसा कल्चर है जिसपे सब लोग एग्री करते हैं। सो दिस नीड्स अटेंशन बिकॉज आवर एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। इतना बड़ा एक मुहिम चल रहा है जंतर मंतर में। आपने किसी आदमी को या किसी सत्ता को हिलाने के लिए भी आप भूख हड़ताल करते हो। सो दैट मीन्स फूड इज एज इम्पोर्टेंट as anything right now. You, Anna. So, doesn't it need attention? That was my question to you. I hope I answered your Was question. definitely from various perspectives, and that's what drew my attention as well. Since you spoke Mhm. about consumerism, individualism versus placing yourself in somebody else's shoes, empathy, because Mhm. responsibility and responsiveness also comes with empathy rather than apathy towards the call that we all receive. And you also touched upon healthcare, etc. So, do you think education? You've also spoken about educating oneself and Mhm. gathering awareness. But do you think our core education should also be more interdisciplinary in nature nowadays? I think it should be more life oriented. It should not be subject oriented. It should not be conditioning a human being, Mhm. you know. And all the education is now conditioning us. In fact, the whole lifestyle of a metro is all about conditioning, that this is the best way to say that I'm successful, I'm not successful, I'm rich, I'm not rich, I'm famous, I'm not famous. Everything in existence has come down to duality. But duality also, they have conditioned every duality. For example, people living in metro cities like Mumbai, Delhi, दे थिंक कि एक तो बड़ा घर होना चाहिए, घर में अरे आपके बैल्कनी भी है, ओ दे आर प्रीटी रिच। अच्छा, एंड दे हैव अ गेटवे टू फार्म हाउस ऑन द वीकेंड। ओ दे डू हैव अ फार्म हाउस आल्सो। Oh yeah, we just grow our own stuff. फिर we went to May, we are just in Europe for a holiday. All these are conditioning. All these are conditioning. सो एजुकेशन क्या करता है कि अभी का जो एजुकेशन है ना, वो यही सारी चीजों को आपको ग्रिप कर दे रहा है और आपको बियॉन्ड नहीं सोचने दे रहा है कि लाइफ इज बियॉन्ड दैट। इट इज नॉट अबाउट दीज फ्यू थिंग्स विच यू हैव। और और ये बंदे के पास नहीं है तो ये गरीब है, ये बंदे के पास है तो ये अमीर है, ये सबसे संपन्न है। जरूरी नहीं है। सो मेरा हमेशा ये कहना है कि वी नीड मनी, वी नीड फॉर आर, इट्स अ ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड। टू डू transaction you need money, but not necessarily that should be the pinpoint the way we are supposed to live. और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज के एजुकेशन में एग्रीकल्चर हो गया या एनीथिंग which is not conditioning you and which is not shaping up your personality, but giving you a wild experience of everything and anything which is around, that kind of education should come in place. So we need to remove those policies. We need to remove those, not remove, but at least revisit those policies and revisit the format of education to explore the human potential. Education is about exploring those potential. It should not be about हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यूपीएससी सर्वेंट हैं, हम नेता हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इतने सारे टैग क्यों हैं? आप सब हो सकते हो ना। उसका सिंपल सा एजुकेशन यही होना चाहिए कि हमारे कल्चर में जो देवी देवताओं के की तस्वीरें बनती हैं, या जो आपने देखा होगा उसमें 10 हाथ होते हैं, करेक्ट है ना। एक में शंख पकड़ा हुआ है, एक में गदा है, एक में ये है। वो क्या बताती है? वो ये नहीं बताती है कि आप एक आदमी में के 10 हाथ निकले हुए हैं, बट वो ये बताती हैं मेटाफोरिकली कि जैसे ही आप आदमी के रूप में आते हो ना इस प्लेनेट पे, आप मल्टीटास्क कर सकते हो। आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए 10 डायमेंशन खुल जाते हैं।
और आप उसी उसी फ्रीडम को आप यू स्टार्ट सफरिंग बाय सेइंग दैट ओ मैं बेचारा इंसान क्या कर सकता हूँ. दैट इज द प्रॉब्लम. दैट इज द एजुकेशन शुड नॉट टीच यू बेचारगी. Education should never teach you a word called depression. Education should never teach you a word called anxiety or stress or any kind of negative emotion, because you have stopped exploring yourself. Now you are getting exploited by all kind of negative emotions. So education should be about exploration. It should secure your future when it comes to money transaction, but that should not be just the agenda. And since we're on the topic of education, and you've also been a part of the series, The Quota Hmm. Factory, and you also touched upon, anxiety and depression. And that series does, focus on students' emotions, their anxiety especially. So, what do you think about, systems such as the one featured over there? आई थिंक कि वो सारी चीजें ना घर से ही शुरू होती है. अगर आप एक बच्चे को, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था, तो मैंने और मेरी वाइफ ने हमने पर्पसली एक चीज डिसाइड किया था कि जब भी हम इसका डायपर चेंज करेंगे ना, वी विल नेवर मेक आवर फेसेस. जनरली क्या होता है कि स्मेल्स और इट डज एनीथिंग एंड यू से छी छी क्या बदबू आ रही है, एंड यू आर जस्ट चेंजिंग. एट दैट टाइम द चाइल्ड इज जस्ट लुकिंग एट यू, ऑब्जर्विंग यू. थ्रू द ऑब्जर्वेशन he starts discriminating what is good smell and what is bad smell. So we experimented with our child, and we never made faces while changing his diaper till the age of say 4 or 5. जब तक वो सब नॉर्मल हो गया, बड़ा हो गया. उसका आज फायदा ये है कि ही इज 14 राइट नाउ. ही कैन वॉक थ्रू अ फिल्थ एज अनअफेक्टेड एज ही वॉक्स थ्रू अ फ्रेग्रेंस. कहने का तात्पर्य ये है कि एजुकेशन जो है ना, वो हम ही लोग स्ट्रेस क्रिएट करते हैं. हम ही लोग कंपटीशन की भावना क्रिएट करते हैं. फलाने का बच्चा को देखो कहाँ पहुंच गया, तुम अपने आप को देखो कहाँ पहुंच गया. आज आज वो सूर्यवंशी क्रिकेट खेल रहा है 15 साल की उम्र में. आधे से ज्यादा ट्वीट्स और आधे से ज्यादा इंस्टाग्राम 15 साल के बच्चों को नीचा दिखाने के लिए, उनके एजुकेशन को भी नीचा दिखा देते हैं कि आज 15 साल का बच्चा देखो हम लोग कहाँ थे, ये कहाँ पहुंच गया. सी, wants to do something, there has to be a determination. There has to be certain dedication. There has to be certain discipline. That boy, he followed that because that's how he thought his life is. His parents never created that competitive nature. They created the fondness for the cricket. They created the likeness for the cricket. And whatever was needed for the cricket, they created the environment for that child. And that is why where he is today, not everyone can be there. So, what do you have to do in education? You have to create the environment for your child, for him to figure out first that if he's interested or he's not interested. If he's interested, then you create that certain thing around him and let him take over it. Then he will bring his discipline. आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट कर रहे हो, उसको हिस्ट्री पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है. इट्स हिज स्टोरी, व्हाई शुड आई रीड. उसको मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स नहीं करने का मजा आ रहा है या कॉमर्स नहीं पढ़ने का मजा आ रहा है. आप उसको कंपटीशन की भावना दे दीजिएगा, और कि नहीं आप उसको फलाने के बच्चे को देखो, उसने तो कॉमर्स में क्या ही नहीं कर दिया और कितना अच्छा गुल नहीं खिला दिया. तो आप ये अननेसेसरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, इसलिए वो नेगेटिव और स्ट्रेस वाले इमोशन में जा रहा है. तो हमारा पूरा एजुकेशन शुड बी इंटरेस्ट ओरिएंटेड and should be interesting for the person who's trying to grasp it. You should just create the environment for the student, not the curriculum always. When it comes to creating this environment to orient somebody to, towards something that they already have an inkling towards, do you think that's a responsibility when it comes to creators as well? Like you said, parents, they orient their son or their child to cricket or, their field of interest. Similarly, do you think even as creators or as producers, there is that sort of responsibility to orient the audience towards a certain concept, or even towards relatability? If we take the example of, Sarabhai versus Sarabhai, and how it has sort of stuck over the years with the audience. So, do you think that's also a responsibility of creators? As I said, the responsibility word is made of two words: respond karne ki ability. Yes. So what are we responding to? Mm-hmm. We are responding to the society. Yeah. The creators, the producers, the makers are responding
व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड। 144 करोड़ की आबादी है, या 145 हो गई होगी रात तक में। 145 सीआर, हमारे 145 करोड़ कहानियां हैं हमारे पास, है ना। एंड ऑल द स्टोरी इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन सोसाइटी। हाउ यू सी इट और हाउ यू वांट इट टू बी सीन इज समटाइम्स बिकम्स अ हिट और समटाइम्स बिकम्स अ फ्लॉप। बट आइडिएशन के लेवल पे और जो भी प्रोजेक्शन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम जब उसको फिल्म के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से या ओटीटी के माध्यम से उसको दिखाते हैं, तो हम उस आंख बंद कर लेते हैं और हम बोलते हैं कि इतनी इतना गंदगी मत दिखाओ, क्योंकि हमने उसको एक कैप्सूल में डाल दिया ना। लेकिन जब आप उसका ब्रॉडर, आप किसी जगह चले जाइए, वहां पे वो घटना घट रही होगी जहां से ये एक्सट्रैक्टेड है, बट चूंकि हमारे नॉलेज में नहीं रहा है तो हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और हमारे नॉलेज में रहा तो हम बोलते हैं कि अरे यार बहुत अच्छा है, फिर हम अचानक से बोलते हैं कि नहीं, हमको रिविजिट नहीं करना चाहिए। अगर सतलज जैसी फिल्म, जो आपको इतिहास ये नहीं सिखाती कि उस समय क्या हुआ था, इतिहास आपको ये सिखाती है कि उस समय जो हुआ था वो दोबारा ना हो, देख लो वो कितना बुरा हुआ था। तो क्या हम उस नजर से सतलुज देख रहे थे? नहीं देख रहे थे। हम उसको एजेंडा बना दिए। अब वो इस सरकार का एजेंडा था या पिछले सरकार का एजेंडा था, बट सत्य घटना तो घटी है ना वो। तो हमने तो उसको बनाया, इन लोगों ने दिखाया। बट अब आप आंख बंद करके बोलोगे कि नहीं 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 नहीं, मतलब वो शुतुरमुर्ग वाली बात है कि हमने रेत में अपना अपनी आंख डाल दी और मुंडी डाल दिया और बोला कि नहीं नहीं, दुनिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट योर बॉडी इज देयर। आर दी ऑडियंस ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग इट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुद्दा वही हो जाता है कि हम कोई भी एक चीज ऐसी नहीं बना सकते हैं जो 144 करोड़ के साथ तालमेल खाता हो, या 144 करोड़ हर वर्ग के लोग हैं ना हमारे पास इमा। आज हर वर्ग के लोग हैं, हर कैटेगरी, हर रेल्म के लोग हैं। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि कुछ चीजें मासी बनती हैं, कुछ चीजें वर्ग ओरिएंटेड होती हैं कि भाई पर्टिकुलर क्लास को ही पसंद आई। जब हम लोगों ने सारा भाई वर्सेस सारा भाई बनाया था, तब वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही पसंद आ रहा था। सारा भाई वर्सेस सारा भाई आज रेलिवेंट है, क्योंकि आज आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लिविंग पैटर्न से, अपने मिडिल क्लास से उठ करके अपर मिडिल क्लास में एक एक जर्नी तय की है आपने, तो अब इसकी लार्जर ऑडियंस हो गई है। बट अभी भी मेरे गांव में बैठे हुए आदमी को सारा भाई पता ही नहीं है क्या है, तो हम ये कहते हैं कि ये ऐसा समाज एग्जिस्ट ही नहीं करता। करता है ना, तभी तो इतने सारे लोग आज सोशल मीडिया पे उसकी बात करते हैं। बट बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग उसको जानते भी नहीं है। सो ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने ली हुई है, उसमें चीजों को दिखाते हैं। राख दिखाया ना भाई, आज अमेजोन प्राइम पे आया राख। राख कितना अच्छा चला, वाई? बिकॉज एक घटना घटी थी और लगा कि यार इतना हीनियस क्राइम रिपीट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, आज भी नहीं होना चाहिए। तो आपने आपको अवेयर तो कर गया वो। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है, उसके बीच में बहुत सारे छोटे 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 सेगमेंट्स हैं, उनके लिए भी कोई बना रहा है। रिक्शा वाले का ह्यूमर तुम्हारे और मेरे ड्राइंग रूम के ह्यूमर से मैच खाएगा कभी क्या? उनको भी तो चाहिए ना मनोरंजन, तो उनके लिए भी तो कोई मेकर होगा। सिर्फ ये हमको, हमारी जो समझ में आ रहा है सिर्फ हम उसी को देखें और उसी को दुनिया मान लें, वो गलत है तरीका देखने का। हमें सबके लिए देखना होगा, हर वर्ग के लिए देखना होगा, हर तरह के सोशल एग्जिस्टेंस को ध्यान में रखना होगा। एंड दैट इज व्हाट द इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। यू हैव ऑल काइंड ऑफ वर्क हैपनिंग, you have good films also, you have bad films also, you have better films also. It all depends how they are perceiving, how the makers are perceiving. Not necessarily it will resonate in the same way with the audience. So this is ongoing process यार। अछूत कन्या करके एक फिल्म आई थी जो बहुत पहले, जो हमारे समाज में तो एक अनटचेबिलिटी भी एक 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 सिस्टम था ना। उस समय को दर्शाते हुए अछूत कन्या एक फिल्म आई थी। वो उस समय की मेजर ब्लॉकबस्टर थी। उसकी वजह से कितना कितना चेंज आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हाउ वी अप्रोच्ड द अनटचेबिलिटी इन इंडिया। सो ऐसी एक एक फिल्म रेलिवेंट रहती है सोसाइटी में। और जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे, जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, उसी तरीके से पर्सपेक्टिव ऑफ वॉचिंग सिनेमा एंड मेकिंग सिनेमा इज ऑल्सो चेंजिंग। So since you said making cinema is also changing, and it's not just, I mean, we did speak about, awareness in different segments of society.
Has, the process over the years also affected your self-awareness? So, for example, a project that you're working on, Oh My Dog, interacting with such themes, has it sort of brought you closer to yourself, or asking yourself questions in terms of what can be learned from animal behavior? Kind of that, has it, See, it nudged you? doesn't matter. It doesn't matter to the animal at all how, what behavior they are doing. They are Yeah. between those two lines of survival. They're born, they grow young, they, फिर वो बच्चा पैदा करते हैं, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं. इसी के बीच में उनकी लाइफ चलती है. हमारा टॉप लाइन नहीं है. वी आर नॉट बिटवीन दोज टू लाइन्स ऑफ एग्जिस्टेंस. कुत्ते को ही नहीं पता कि उसका नाम कुत्ता है. कुत्ते को सिर्फ पता है कि वो है ना. उसको थोड़ी पता कि आप उसको गधा बुलाने लगो क्या फर्क पड़ेगा उसको, आप उसको घोड़ा बुला लो क्या फर्क पड़ेगा. सो चेंजेस हमारे अंदर दूसरे क्रीचर को देखने की समझ ना सिर्फ हमारे अंदर है. हमारी ही वो समझ हट गई थी. इस वजह से हम किसी भी एक चीज को छोटा देखने लगते हैं और किसी भी चीज को महान बना देते हैं, है ना. हम उसको उसको हर चीज को ना इंसान जो है अपने पर्सपेक्टिव से देखना चाहता है. कुत्ता भी आपको अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है. मेरे अंदर कोई चेंज एज सच नहीं आया बिकॉज मैंने कभी अपने पर्सपेक्टिव को बदला ही नहीं था, अगर मैं अपने इंडिविजुअल सेल्फ की बात करूं. हैविंग सेड दैट, स्ट्रे डॉग की समस्या चल रही है हमारे देश में. जो कॉन्शियस लोग हैं, हम लोग, वी आर सपोज टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर when it comes to population control. When we are not aware, how do you expect dogs to be aware that यार हम, प्रकृति ने तो उनको एक साथ 8-8 10-10 बच्चे पैदा करने की क्षमता दी है. हमें तो फिर भी 2-3 पे लाके रोक दिया. अगर सोचो हम ही 6-7 बच्चा पैदा कर रहे होते तो आज आबादी कहाँ चली जाती. तो जब हम अवेयरनेस के साथ अनअवेयर काम कर रहे हैं, तो हाउ डू यू स्टॉप दैट ग्रोथ ऑफ डॉग पॉपुलेशन. और फिर समस्या कहां से आ रही है? पॉपुलेशन से ही तो समस्या आ रही है ना. आज कंजम्पशन से लेकर के, ओवर यूज से लेकर के, एक्सप्लॉयटेशन से लेकर के, शॉर्टेज से लेकर के, सारी चीजें तो आबादी की वजह से ही हैं. तो कुत्तों की भी आबादी उसी लेवल पे बढ़ रही है ना. अगर आपको वो समस्या दिख रही है, आप उसको रोकिए. बट उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो उनकी जिंदगी है. वो आप उसमें अपने तरीके से, आज हम जंगल भी अपने हिसाब से बनाते हैं यार. इस लाइन में ऐसा जंगल होगा, ये लाइन में ऐसा जंगल होगा, फिर इतना इतना ही एरिया जंगल चाहिए. आज आप 5 स्टार होटल्स में चले जाइए, इतना एकड़ एकड़ का है, सिर्फ मैदान खड़ा किया हुआ है क्योंकि वहां शादियां हो. अरे पेड़ लगा दो. अगर तुमको इतना ही प्रकृति के बारे में सोचना है तो तुम गमले में फूल लगा करके, और तुम ब्यूटिफिकेशन में तुमको पूरा ध्यान है, ग्रोइंग में किसी को ध्यान ही नहीं. When you do these kind of film, na, it is also, again, as I said earlier, it's a reflection of your society. So society has gone down in their viewpoint about these other existing creatures, coexisting creatures, that they have started treating them like as though it does not exist, or it is always of nuisance value. No, they have always been part of your existence. तुम एक डब्बे में आके बंद हो गए हो. तो ये सारी चीजें ना इस तरह, इसलिए ये फिल्म बनाना जरूरी था जहां पे कुत्ता हीरो है और इंसान विलेन है. उनके नजरिए से देख रहे हैं हम लोग. और जब उनके नजरिए से हमने देखना शुरू किया तो लगा कि हाँ यार, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है. हम ही तो बना रहे हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम अपना बना रहे हैं तो हम ही कुत्तों का भी बना सकते हैं. बट दे आर इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर बिटवीन टू लाइन्स of existence. We are difficult to understand because आपको पता नहीं है कि मैं जो मुंह से बोल रहा हूं वो क्या मैं सही अंदर से हूं या नहीं. कुत्ता अगर आपको घूर के देख रहा है तो आपको पता है कि या तो ये काटेगा या तो डरा रहा है. उसका तो इंटेंशन एकदम साफ रहता है ना. दो ही के बीच में तो चल रहा है वो. या तो वो प्यार में रहेगा, नहीं तो काटेगा. हम तो प्यार करते करते काट लेते हैं. तो इस तरह की फिल्में जो है ना, वो मैक्सिमम सोसाइटी को इम्पैक्ट करना चाहिए, खास करके पढ़े लिखे वर्ग को. और उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि ये भी हमारी उतनी ही जरूरत है जितना हम इनकी जरूरत है. और सिर्फ वही नहीं, एक एक खेत में चलता हुआ केचुआ, अर्थवर्म, भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उस खेत में आप ट्रैक्टर चला रहे हैं. लेकिन जिस दिन आप अर्थवर्म का इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे, उस दिन आप खेत में ट्रैक्टर चलाना बंद कर देंगे. बट हमें समझना है, ये नहीं समझना है. हमें सब कुछ क्विक बक चाहिए.
So I love how we started off with, farming and nature, and we are back to nature and animals. And the recurring theme is actually, empathy, authenticity, and everything. And it kind of does poetic justice to what you said about going back to your source, because we've come a full circle in this interview. Would like to know if you have any, parting message for maybe audiences in general. No, I think they're doing fine. They're doing fine. They're accepting the right kind of cinema. They're accepting the right kind of entertainment. Yeah, it is definitely costly, and not everyone can afford to see all the films. But having said that, they are responding to right kind of subjects, whatever they are liking it, and they should be even more aware, not only just being on the other side and just being an audience, but it is also good if they participate and use social media and use all these mediums what is available today to reach out to maximum audience. And on that note, I would like to read out a poem. It's a poem written by Sadhguru, which is my, what you say, my jo bhi usko bol lo, theme of life or whatever. It's a poem called Shameless. A peacock with his magnificent plume, plume jo pank hota hai uska, a masterpiece of color and form without compare, has to let out high pitched calls to get attention to his immense beauty. Living in this world that is distracted beyond words and clueless of the many rewards of keenness, of attention in challenging times that we are. If you have something of value that could benefit life in smallest ways, stand up and shout shamelessly. This is my message to the audience. Beautiful. Thank you. Thank you so much for this profound Thank message. you. This has been a very holistic and philosophical discussion. So, thanks a lot for doing this. Thank And you. Thank you. yes, It was pleasure, and you conducted it very well, and you had very very set right questions, because all the podcasters these days की जिंदगी में कहाँ से शुरुआत की, तो आपने एक्टिंग कैसे शुरू की, so you get bored answering those. So I've stopped attending too many podcasts these days because I do not find the questions relevant. So thank you so much for these relevant thank you so much. questions. Really means a lot. Thank you, Yes. and I hope we recorded it in during the time frame. Yes, yes, absolutely. Yeah. Superb, superb. Thank you, Emma. Thank you. Pleasure. Yes. Thank you. Thank Take you care. so Bye. Bye. much. Bye bye.